کہ شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہے، دن بھر بادل چھائے رہیں گے۔ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال جانتے ہیں مبین حیدر سے، جو اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہیں۔ جی مبین، بتائیے گا۔ اس وقت بھی ہم لبرٹی چوک کے علاقے میں موجود ہیں اور شہر لاہور میں آج بھی موسم قدرے خوشگوار رہنے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ درجہ حرارت کی اگر بات کرتے چلیں تو کم سے کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 33 تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج بھی سارا دن بادلوں اور سورج کی آنکھ مچھلی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور شہر کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اس کے پیش نظر محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ پریکاشن میئرز کو اختیار کریں اور ساتھ ساتھ ہبس کی کیفیت جو ہے اس سے شہری ضرور دوچار رہیں گے آج سارا دن، کیونکہ جو ہے موسم تو خوشگوار رہے گا لیکن ہبس کی کیفیت اس طرح برقرار رہے گی، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھلی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گرمی کی جو شدت ہے، جو سورج کی تپش تھی، وہ کافی حد تک کم محسوس کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکیو انڈیکس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا آج کے روز میں بھی۔ شہریوں کو چاہیے کہ پریکاشن میئرز کے اختیار کریں، کسی قسم کا جو موسم کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، اس سے شہری محفوظ رہ سکیں۔ جی شکریہ مبین۔ تو خبر ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹون نے مقتول کے بیٹے قیوم کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق او سی یو ٹیم نے قیوم شاہد کو ٹھوس شواہد پر حراست میں لیا ہے۔ قیوم نے مبینہ طور پر شوٹر کی مدد سے اپنے والد کو قتل کروایا ہے۔ قتل کے وقت مقتول ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی موجود تھے۔ مزید بتائیں گے مدثر حسین۔ مدثر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹون نے مقتول کے بیٹے قیوم کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق او سی یو ٹیم نے قیوم شاہد کو ٹھوس شواہد پر حراست میں لیا ہے۔ قیوم نے مبینہ طور پر شوٹر کی مدد سے اپنے والد کو قتل کروایا ہے۔ قتل کے وقت مقتول ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی موجود تھے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، شہر کے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 10 روز میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بھکر میں 28 ملی میٹر، گجرات میں 83، منڈی بہاؤدین میں 40 ملی میٹر، نارووال میں 43، جبکہ مری میں 31 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کے امکانات ہیں۔ یہ سلسلہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ کو تیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ سبززار کا پارک اب بھی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پارک سے بارش کے پانی کی نکاسی ممکن نہ بنائی جا سکی، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے۔ پارک میں بارش کا پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ حالیہ موسلادھار بارش کے اثرات اب بھی موجود۔ سبززار کا تکونی پارک میں تاحال بارش کے پانی سے بھرا پڑا ہے۔ پارک میں کئی فٹ تک پانی جمع ہے، مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بچے کھیل کود جبکہ بڑے چہل قدمی سے محروم ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک میں چاروں سے بارش کا پانی جمع ہے۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ پانی کی نکاسی کا فوری بندوبست کیا جائے۔ ہر دفعہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی باہر تک آ جاتا ہے، گلیوں تک، گھروں تک پانی آ جاتا ہے سارا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ خود ہی نکلتا ہے۔ نکالنے والا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آیا یہاں پہ۔ ادھر بچوں کو کھیلنے کی جگہ ہے، کافی یہ بارش کی وجہ سے بیماریاں وغیرہ لگ رہی ہیں، کیڑے مکوڑے طرح کے ہیں، خالی ڈینگی کا نہیں ہے، اور بھی کئی قسم کے یہاں پہ انسیکٹس ہیں۔ اور اس طرح ہی ہے کہ بزرگوں کی بھی یہ واک کرنے کی جگہ ہے، ہم بھی یہاں پہ کھیلتے ہیں، کرکٹ وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کافی تنگی ہے اور یہ سالہ سال ایسے ہی چل رہا ہے۔ پارک میں پانی جمع ہونے سے ڈینگی مچھر کی افزائش کا بھی خدشہ ہے۔ شاہدرہ میں بارشوں سے صورتحال ابتر ہے۔ مکھن پورہ بازار جوہر کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ تاجروں کو دشواری کا سامنا ہے۔ باسامنا کئی گھنٹے بعد بھی علاقے سے بارش کا پانی نکالنے نہیں آیا ہے۔ شدید بارشیں اہل شاہدرہ کے لیے پریشان بن گئیں۔ مکھن پورہ بازار میں بارشوں کا پانی جمع ہونے سے کاروبار متاثر، خریدار آتے ہوئے کترانے لگے۔ تاجروں نے بتایا کہ خریداروں میں کمی کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ بارش کے بعد واسا کا عملہ مکھن پورہ بازار سے پانی نکالنے نہیں آیا۔
लोग अपनी मदद आप के तहत बाजार से पानी को निकालते हैं तो फिर बारिश हो जाती है। गंदे पानी की वजह से हर तरफ बदबू फैली है। मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश से बीमारियां फैलने का खदशा है। वासा का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया, ये अपनी तहत खुद मदद के तहत ये पानी निकालना पड़ता है यहाँ से। अभी भी आप यहाँ पे चेक कर लें, गटर सारे बंद होंगे, गटर कोई नहीं यहाँ पे ओपन होता। ऊपर से इस साइड में पानी तो ऐसे मक्खनपुरा में जमा होता है जैसे नहर है। सब आ जाते हैं, वोट वगैरह मांगते हैं, फिर बाद में कोई आता नहीं है, क्योंकि घर के नलके वगैरह खोले पानी साफ के लिए, उसमें भी पानी नहीं आता, गंदा आता है। नहाने के लिए तब वो गंदा पानी, स्मेल इतनी है कि हम सब बीमार हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने डीसी लाहौर और एमडी वासा से अपील की है कि शादरा खासकर मक्खनपुरा बाजार में निकासी आब का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए। कैमरामैन बिलाल के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। खबर है मियामीर क्रिकेट ग्राउंड में 3 दिनों से बारिश के पानी का बसेरा है। क्रिकेट की सरगर्मी मुतासिर, बारिश के पानी से गंदगी फैलने लगी है। बासु और दीगर इंतजामी इदारों की नाअहली की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 3 दिन से खड़ा बारिश का पानी वासा और दीगर इंतजामी इदारों को मुंह चढ़ाने लगा। मियां मीर क्रिकेट ग्राउंड की हालत भी यही है। मुसलसल खड़े पानी से बदबू और ताफुन फैलने का भी खदशा। जगह जगह मक्खी मच्छरों की बहुतात नजर आने लगी। वासा और दीगर इंतजामी इदारे खामोश। शहरी कहते हैं इंतजामी इदारों के दावों के बरक्स यहाँ अभी तक पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन होता है छुट्टी का, एंजॉय करने के लिए आते हैं ग्राउंड में, ठीक है, तो आपके सामने ये जो हालात चल रहे हैं, पानी तो जैसे निकाला किसी ने नहीं है, इसी वजह से ये डेंगू मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए नुकसान है, ये सामने हमारा घर है, ठीक है, तो हम तो बहुत ज़्यादा इस वजह से टेंशन में कि आगे मच्छर ही मच्छर इकट्ठे हुए हैं। ग्राउंड में मुसलसल पानी खड़ा रहने से क्रिकेट सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। बादामी बाग लारी अड्डा में सीवरेज का पानी सड़क पर गढ़े मुसाफिरों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। टूटी सड़क से ड्राइवर हजरात भी गाड़ियों के खराब होने का शिकवा करने लगे हैं। लारी अड्डे में जमा सीवरेज का पानी ताफून और बदबू का बायस। टूटी सड़क पर गंदे पानी ने मुसाफिरों की जिंदगी अजीरन कर दी। सीवरेज और बारिश के पानी ने जोहड़ का मंजर बना रखा है। सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी बता रही है। ड्राइवर और मुसाफिरों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को फौरी नोटिस लेने की अपील की है। 4-5 दिन हो जाते बारिश में, ये पानी कढ़न का इन्हों कोई सिलसिला ही कोई नहीं इन्हों को। सारी गल है कि इतने इतने बड़े खड्डे हो गए न, गड्डियां हिस्से तरोड़ छड़दियां, टायर फाड़ देंदियां, लेकिन काम कराने वास्ते कोई बंदा तैयार नहीं। जितनी भी पब्लिक आती है सारी परेशान होती है, कोई बच्चा गिर गया, कोई वो गिर गया, कोई वो गिर गया। हाँ जी, तो पानी निकालने की यहाँ जगह नहीं है, जो पानी निकालने वाले वो भी बैठे रहते हैं। लाहौर के सबसे बड़े लाड़ी अड्डे की सफाई की अबतर सूरत हाल पर मुतल्लिका इदारों की खामोशी से अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। बारिशों का पानी शहरियों के लिए परेशानी। शहर की तफरीह गाहें बारिशों का पानी जमा होने पर वीरानी का मंजर पेश करने लगी है। जलानी पार्क में पानी की निकासी न होने से बच्चे खेलने से रह गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून की बारिशों से तफरीह गाहें भी मुतासिर। बारिशों का पानी जमा होने पर तफरीह गाहों में भी शहरियों की कम तादाद नजर आई। इंतजामिया की गफलत के बायस जलानी पार्क से पानी की बरवक्त निकासी न हुई। जलानी पार्क के ग्राउंड झीलों का मंजर पेश करने लगे, बच्चे खेलने से रह गए। शहरियों का कहना है तफरीह गाहों में तो पहले ही बहुत पानी है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इंतजामिया पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़्म हर बेघर के लिए अपनी छत अपना प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी है। 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया है। बेघर को मिलेगा अब अपना घर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने प्लाट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। वज़ीर आला की मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए टॉल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए खसूसी पोर्टल तैयार करेगा। घर के ख्वाहिशमंद घर बैठे ही ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फॉरम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर से हासिल किए जा सकेंगे। 1 ता 5 मरले तक प्लॉट के मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। सरकारी जमीन पर ग्राउंड और 3 मंजिला अपार्टमेंट्स के प्रोग्राम का PC1 मंजूर। फिजिबिलिटी स्टडी जल्द होगी। प्राइवेट स्कीमों में 3 और 5 मरले के घर फाटा के अलॉटीज को मिलेंगे। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज ले सकेंगे। माइक्रो फाइनेंस अदारों के जरिए कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता तारर, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर और अली परवेज़ मलिक शरीक हुए। इजलास में मौजूदा सियासी और मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। उनके अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकातें करने वालों में राना मशहूद, शिजा फातिमा और असदुर रहमान गिलानी भी शामिल थे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। वफाकी वज़ीर इत्तला तारर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने इख्तिलाफी नोट में अहम नुक्ते उठाए जिनका जवाब आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट सामने आया है जिनका जवाब आना जरूरी है। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल्स 175 और 185 से बाहर जाकर लिखा गया। मखसूस नशिस्तों पर उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। आइन के कुछ आर्टिकल्स जो रिजर्व सीट्स को डील करते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बातचीत करते हैं, उन आर्टिकल से बाहर जाकर ये फैसला लिखा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। अता तारर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो पार्लिमानी वजूद ही नहीं रखती थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील को अब तक समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं था पार्लियामान के अंदर, हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब इस पे भी आइन भी क्लियर है, कानून भी क्लियर है। आइन ये कहता है कि वो सियासी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना था, कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास बारे मुशावरत की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में 11 अगस्त को होने वाली पंजाब असम्बली इजलास बारे मुशावरत की जाएगी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की हल्फ बर्दारी बारे भी मुशावरत होगी। इजलास में आइंदा के कौमी असम्बली इजलास के हवाले से भी लाए अमल तय किए जाएंगे। डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। 940 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा करें। डेंगू वायरस का फैलाव रुक न सका। पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। शहर में इंसदादी डेंगू टीमें भी मुतहरिक हैं। 24 घंटों के दौरान 940 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। शहर में 20,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है। शहरी डेंगू SOPs पर अमल करें वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन और नई मेन बिल्डिंग के संग बुनियाद की खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक संग बुनियाद रखने की तकरीब आने वाले दिनों में मुनक्किद होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से आगाह किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग को जून में गिरा दिया गया था। मेन बिल्डिंग को ग्राउंड के करीब किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने अपग्रेडेशन की डेडलाइन रवां साल दिसंबर तक दे रखी है।